এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় খবর এইচডি লাইভ 24/7 इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। A state level awareness workshop has been organized at Maharashtra Victim College in Agartala on Saturday under the initiative of the Department of Social Welfare and Social Education with the aim of building a drug-free Tripura. The Governor of Tripura, Indra Senaraty Nalu, has inaugurated the workshop. Merely a law and order issue, it is a profound social, economical and moral crisis that threatens the very fabric of our society. The vision of Nasha Mukt Bharat or a drug-free India championed by our Honorable Prime Minister is not just a government slogan, it is a vital necessity for the future of our nation. As the Prime Minister powerfully stated in his Mann Ki Baat, the drug menace brings about the three Ds. Ds means first, darkness, destruction and devastation. This is a threat we must combat with the full force of our collective will. People are falling prey to drugs in many forms. Tobacco, gutka, hashish, cannabis, oil, jarda, bhang, opium and several other narcotic substances. Tripura is a small state but it has a long international border. It is becoming increasingly evident that drugs are being smuggled across the border. The efforts of the border security forces, Assam Rifles, the Indian Army, Tripura State Rifles and the police in combating this menace are truly commendable. The Social Education Department also deserves appreciation for its dedicated efforts in creating public awareness and preventing drug abuse. Various government departments are working together in a coordinated manner to eliminate this menace. From this platform, I extend my heartfelt appreciation to all of them for their tireless service. Some individuals knowingly become involved in drug-related activities, while many innocent people become victims without realizing the trap into which they have fallen. During travel, strangers may request you to carry a parcel or deliver an item to someone else without your knowledge. It may contain drugs. Such innocent mistakes can lead to serious legal consequences if you are caught by the police. Therefore, everyone must remain alert and vigilant at all the times. I will give two examples. One of my known person, she is traveling from America to India. One of her friend, classmate there, she requested that my uncle is there in Dubai. He wants some books. He wants to you carry that books to Hyderabad. She blindly believed and she brought that book to Hyderabad. At the Hyderabad airport, the customs people, they got that book and in the bound this thing, the drug material is there. So she has been got arrested and sent to jail. For this, no court can give bail, however you may be innocent. So we must be careful. And second example I will give, one of the person called his friend that मेरा गाड़ी खराब हो गया है, आपका इधर कंपाउंड है, कंपाउंड में आज रख देता हूँ, कल सुबह में लेके जाऊँ. कल सुबह नहीं आया, पुलिस आए
सीज करे तो कौन गया अंदर? जो शेड का ओनर है वो ने अंदर गया। तो कभी कभी जो ये स्मगलर्स है, जो ट्रैफिकर्स है, ये अपने को बगैर मालूम होते हुए भी अपने को ट्रैप में करके अपना प्रॉपर्टी यूज करते हैं, अपना बैग यूज करते हैं, अपना ट्रैवल यूज करते हैं। तो अपन इससे सतर्क रहना है। Drug abuse causes immense harm not only to the individual but also to the families and society as whole. Very often addictions begin with seemingly harmless habits such as smoking cigarettes. Many young people mistakenly associate smoking with a style, courage or heroism. अभी क्लास में बोलते ना, अरे तुम बच्चा है, तुमको नहीं मालूम है, तुम तो खराब आदमी है, हम कैसा पीते हैं देखो, कैसा पफ निकालते हैं देखो, कितने रिंग्स निकालते हैं देखो, और कितना बड़ा निकालते हैं देखो। ऐसे प्रोवोक करते हैं। ये प्रोवोक, इसमें अपन कभी वो चक्कर में जाना नहीं। अगर वो चक्कर में गए तो पहले पफ में जाएगा, अरे ये तो सिगरेट है, ये नहीं, इसमें थोड़ा आशीष एक ड्रॉप डालो, उसके बाद में नशा देखो। तो उसके बाद में वो उसमें जाते हैं और उसके बाद में उससे बस नहीं होता। और ये नहीं, आप ड्रग्स ले लो, पिल्स ले लो, वो भी बस में होता है, तो इंजेक्शन ले लो। अब इंजेक्शन लेते हैं तो घर में मालूम होता है, तो घर में कैसे मालूम होता है? ये कुछ इंजेक्शन का नीड दिख रहा है, तो ये छुपाने के लिए क्या करते हैं? फिर उसको काला काला बोलते हैं ना, मार्क, टैटू 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 मारते। तो टैटू क्यों? ये नहीं दिखना इसीलिए टैटू मारते हैं। तो आप समझना है, अभी कुछ कुछ जॉब देने वाले कंपनीज है और गवर्नमेंट का है, प्राइवेट का है, इंटरनेशनल वीजा देते समय अगर किसी को टट्टू है तो उसको रिजेक्ट करते हैं। वी मस्ट बी केयरफुल अबाउट दिस ऑल्सो। और वो एक ही नहीं, आज एक दिन पी लो कुछ नहीं होता, नहीं, 6 महीने तक आपके ब्लड में आपका इसका सिम्टम्स होता है। अगर ये 6 महीने में अगर आप कोई इंटरव्यू को गए, कहाँ तो भी टेस्टिंग को गए, तो गया है आपका जॉब। तो इसीलिए यू मस्ट बी केयरफुल। ये छोटा है that they are slowly getting trapped in a vicious circle of addiction. There are forces that seek to weaken our youth by using drugs as a weapon. By pushing your young people into addiction, they aim to destroy their health, diminish their potential, and even cause long-term health complications including infertility. अभी अपन ये भी सोचना है, आगे जाने के बाद बच्चे नहीं हो रहा है तो ये ड्रग का प्रॉब्लम भी हो सकता है। Those who become addicted to drugs not only ruin their own health but also contribute to antisocial activities, domestic disturbances, and undesirable incidents in society. They disturb peace both within their families and in the community. Therefore, this menace must be stopped as its very roots before it spreads to further. कभी कभी अपन अच्छा घर बना देते हैं, मगर कोई रास्ते में न्यूसेंस करने वाले हैं तो अपना पीस भी जाता है। आपके लिए मैं दूसरा एग्जाम बोलने का नहीं है, जहां आप है, जहां आज मैं खड़े रहा हूं, ये
इंस्टीट्यूशन में फर्स्ट टाइम में जब आया था, उस टाइम का बच्चों का कंप्लेंट क्या था, स्टूडेंट्स का कंप्लेंट क्या था, सर हमारे कैंपस में ड्रग्स बेच रहे, रास्ते में आए तो डब्बे के पास रास्ते ड्रग्स बेच रहे, और रात में होते ही इधर ये नशा वाले इधर घूमते हैं। दिस वॉज द कंप्लेंट। आई इन्फॉर्म्ड द पुलिस एट दैट टाइम। वो बोले कि निकाल दिए हैं, वॉच रख रहे हैं। अभी लेटेस्ट क्या है नहीं मालूम, तो लेटेस्ट के लिए क्या करना है मैं अभी बोलता हूँ। Those who become addicted to drugs, as we intensify efforts to destroy illegal cannabis cultivation, traffickers are adopting new methods. Drugs are now being processed into oils, extracts, and private farms in other countries and smuggled into our nation. We must therefore remain highly vigilant and exercise extreme caution. If anyone has any information regarding drug trafficking or illegal drug activities, it should be immediately reported to the police. मैं अभी क्वेश्चन पूछ रहा था वो क्विज में, असली कोई क्वेश्चन एक दो पूछना था, नहीं पूछा है। अभी मैं पूछता हूँ, ड्रग का कोई ट्रैफिकर है तो उसके लिए किनको फोन करना है? कैन यू गिव एनी टोल फ्री नंबर? हाथ उठाओ। नहीं है। ड्रग एडिक्ट हो गया है, उसको डी एडिक्ट करना है तो कौन से टेलीफोन नंबर को फोन करना है? कोई मालूम बोल सकते हैं? बोलिए। रॉन्ग नंबर बोलो। 112 रॉन्ग नंबर। आज आप वोट लिए हैं, जो वोट लिए हैं वो जितने लोग वोट लिए हैं आपके लोग, आप कंप्यूटर में जाके आप एंट्री करो, आपको एक सर्टिफिकेट आएगा। वो सर्टिफिकेट में लिखा है 14445। आज सुबह सुबह हमारा करके आए हैं ये डी एडिक्शन के लिए। और दो नंबर है, और दो नंबर, एक है 14445 और दूसरा है 1908। If you wish to report matter related to drugs, you may contact the toll-free helpline 1933. For general information and assistance, you may also call 1908. Those involved in selling or purchasing drugs will face strict legal action and imprisonment. अभी ऑफिसर्स के पास आता हूँ, जो फोन करता है वो फोन करे सवालों को वो ट्रैफिकर्स लेके मारते हैं, घर के ऊपर अटैक करते हैं, तो इनके लिए क्या प्रोटेक्शन दे रहे हैं? एसपी बैठे हैं, डिपार्टमेंट वाले हैं, तो इसका भी सॉल्यूशन है। इसका सॉल्यूशन एक ही है, जो फोन करता है उनका नंबर मालूम नहीं होना है, मगर वही फोन करता है आपके पास कंप्लेंट उनके पास रहना है। इसके लिए जैसा इलेक्शंस के टाइम पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक नंबर देता है, उसका नाम है सी विजिल 1950 आपके लिए नहीं, उनके लिए
अगर कोई 10 बजे से कैनवास करना है, 10 के बाद में 1 मिनट को चीफ मिनिस्टर बात कर रहा है, फोटो ले लो, भेजो, तुरंत चीफ मिनिस्टर के ऊपर केस होता है, मंत्री होता है, केस होता है। और पब्लिक वॉल के ऊपर कोई विदाउट परमिशन लिखा है, सी विजिल के ऊपर उसको डालो तो 15 मिनट में केस होता है, पुलिस आता है, 15 मिनट में नहीं आए तो 2 घंटे में फिर सीआरओ आरओ आता है। तो ऐसा सिस्टम है। तो आप भी ये जो कंप्लेंट करते हैं ड्रग के बारे में, वैसे आप भी करना है। उससे क्या होता है, अगर इधर कोई पी रहा है, कोई सेल कर रहा है, उसका मैप दे दो, उसमें भेज दो, ऑटोमेटिकली वो आके इसको इमीडिएटली करने का चांसेस है। वैसा भी अपन ढूंढ सकते हैं। इधर एसपी बैठे हैं तो वो सिस्टम में भी देखना है। challenges facing our nation and our below state of people. आप सबको मालूम है, पहले अगर युद्ध होता तो आदमी मारते थे, बाद में सामने वालों को कैसे उनको फाइनेंशियली डिफिकल्टी में डालना है तो उनका प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉय करो, या उनके आदमी को पानी में विष मिलाओ और वैसे ही स्पॉइल करो। तो अभी नेशनल वॉर्स में पूरे वर्ल्ड में अभी जो वॉर्स हो रहा है वो अलग अलग किस्म के हैं। तो वो इसे आज में वॉर्स में डायरेक्ट फाइट करना कम होते जा रहा है। साइबर वॉर चल रहा है, इंफॉर्मेशन वॉर चल रहा है, होता कुछ और सब में प्रचार करना अलग होता है। वैसे ही साइबर वॉर में अपन देखे हैं, कभी कभी अपने नॉर्थ में ट्रेन्स को पूरा इलेक्ट्रिकल ये करके खराब करे हैं, इलेक्ट्रिकल लाइंस को कंप्यूटर में फॉल्स इसमें दे के खराब करे हैं। तो वैसे ही किसी कंट्री को प्रॉब्लम में डालना है तो जंगा कराओ, फेक करेंसी लाओ, ताकि उसका वो कंट्री का इमेज ही पूरा गए। कोई बाहर से नहीं आ सकता है, इधर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है। तो वैसे ही अभी अपने जितने नेबरिंग कंट्रीज है, अपने शत्रु देश है, वो अपने पास कैसे भी आगे पीढ़ी को खराब करना है। आगे आने वाले पीढ़ी जो है वो पीढ़ी को अगर खराब करे तो देश खुद डिफिकल्टी में आ सकता है। ये पहले भी करते थे। राजा महाराजा जब थे, उनके बच्चों को विष पिलाना ऐसे भी करते थे। तो अभी भी अपने जितने भी यूथ है, ये यूथ को खराब करने के लिए, नशा में इसी में डालने के लिए बाजू के कंट्रीज अलग अलग किस्म से अपने ऊपर दबाव करते हुए अपने इसमें एंट्री करते रहेंगे। अभी किसी ने पूछा है, बाहर से आता है तो आपको मालूम है क्यों नहीं कर सकते? अपन करते हैं, मगर अलग अलग किस्म से अलग अलग इसमें से बाहर आता है। कोई सोचा है क्या ये अभी ऑनलाइन में ऑर्डर करे तो भी आएगा बोल के? पहले नहीं था, अभी आ रहा है। अभी तो स्विगी में भी ऑर्डर कर सकते हैं, ऐसे भी बोलते हैं। तो जैसे जैसे
इश्यूज आते हैं उसको वैसे ही अपन टैकल करना है। इसीलिए आज आपके साथ ये मीटिंग जो है, ये सेशन जो है रखे हैं। कभी ऑफिसर्स को भी मालूम नहीं होता, वो आपको मालूम हो सकता है। कैसे सोल्यूशन निकालना ऑफिसर्स को भी मालूम नहीं हो सकता है, वो आप सजेशन दे सकते हैं। इसीलिए ये सेशन रखे हैं। Bureau Report, AGT Live 24/7.